Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, today date is 9 February 2021. I am teaching you chapter number 9 and name of the chapter is Living Safely. So let student do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, I explained you what is first aid, the immediate help given to the victim before the doctor arrives, that is known as their first aid. And after that I explained you what are the things that we kept in the first aid box. Okay, what are the things that we can kept in the first aid box, we have discussed that. So and after that what first aid we will give at the time of burn, at the time of cuts and wounds, at the time of a heat stroke. This we have discussed in our previous video. Now in today video, what first aid we can give to the patient or to the victim before the doctor arrives, that we will discuss. Now, nose bleeding. Okay, so during summer, when this problem arises during summer, because the weather is very hot. Okay, so now what we can do, what type of first aid we can give to the patient if his nose, blood is coming from the nose of that victim. Okay, so and especially this problem occur in the summer season, because at that time the weather is very hot. So during summer nose bleeding is very common. So what precaution we can give to the, what we can, how can we help the patient? First है sit or lie with his head lower than his body. ठीक है, जो हेड है ना बेटा आप उसको लेटा सकते हो, और जो हेड होगा ना बॉडी से लोअर होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे हुआ, ये ऐसे आप सीधे लेटे हो तो हेड ऐसे हुआ, इन दिस मैनर। इज इट क्लियर? ये स्ट्रेट बॉडी है तो हेड क्या होना चाहिए, बॉडी से लोअर होना चाहिए, इन दिस मैनर। सो सिट और लाई मतलब लेटा दें उसको विद हिज हेड लोअर देन हिज बॉडी, प्रेस द नोज टू स्टॉप bleeding. Okay, and then you can also do this, pour cold water on the head or apply ice pack on the nose. ठीक है, आप उसके हेड पे कोल्ड वाटर भी रख सकते हो, क्योंकि ये होता ही है, बहुत ही कॉमनली ये होता है कि हॉट वेदर में। ठीक है, सो आप उसके हेड पे कोल्ड वाटर रख सकते हो, या तो फिर आप इफ देयर इज अ आइस इन द रेफ्रिजरेटर, then you can apply ice pack on the nose. ठीक है, ask the patient to breathe through his mouth and not to blow his nose. और बेटा उस समय उसको नोज से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे समय आप पेशेंट्स को बोल सकते हो कि आप ब्रीथ ले रहे हो, मतलब सांस ले रहे हो, सो यू ब्रीथ थ्रू द माउथ। ठीक है, क्योंकि अगर नोज से वो ब्रीथ करेगा सो तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू ये हमने डिस्कस कर लिया, एक बार इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ नोज ब्लीडिंग जनरली वी सी इज वेरी कॉमन इन द समर व्हेन द वेदर इज वेरी हॉट. So the patient
को आप बैठा सकते हो या तो आप उसको लेटा दो। एंड हिज हेड इज लोअर देन द बॉडी, वो पोजीशन मैंने अभी आपको दिखाई भी। ओके, अनदर थिंग यू कैन डू दैट यू कैन पोर slowly, you can press the nose so that to stop the bleeding. Another, pour cold water on the head. ठीक है, ठंडा पानी सर पे रखना है, या तो अगर आइस पीसेस हैं रेफ्रिजरेटर में then you can apply ice pack on the nose. ठीक है, and ask the patient, and we will ask the patient to breathe through the mouth, not from the nose. So this type of a first aid we can give to the patient. After that, animal bites. Okay, after that, what precaution we will take at the time of animal bites? See, ठीक है, so what we can do, first of all, if any animal bite, then wash the injured portion immediately with the soap and water to remove the germs, okay, which carry rabies. And you know that if a dog bite, अगर dog के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है. Is it clear? So रेबीज इज कैरीड इन द सलाइवा ऑफ डॉग्स है, वुल्व्स है, कैट्स है, जो जैसे हमारे माउथ में भी सलाइवा होता है. ठीक है, एंड दिस सलाइवा इज प्रोड्यूस थ्रू द सैलिवरी ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर माउथ. ठीक है, ये क्या, हम अपने टीथ से फूड को कट करते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में, उसके बाद ये सलाइवा क्या है, विद द हेल्प ऑफ ए टंग इट मिक्स विद द फूड. ठीक है, और इसको एक पेस्ट बना देता है जिससे कि हम इजिली उसको सॉलो कर सकें नीचे नेक से. ठीक है, सो इसी तरह एनिमल्स में लाइक डॉग है, वुल्व्स है और कैट्स में भी सलाइवा होता है माउथ में. और ये जो वायरस होता है जिसको हम लोग ने बोला रेबिस, तो ये इनके सलाइवे में होता है. ठीक है, जैसे हमारे माउथ में सलाइवा होता है तो इनके माउथ में भी सलाइवा होता है. तो जो रेबिस के वायरस है इसके माउथ में होते हैं इन एनिमल्स के, डॉग, कैट एंड वुल्व्स. नोट कर सकते हो आप, रेबिस, 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 रेबिस is carried, rabies is carried in the saliva, carried in the saliva of dogs. ठीक है, wolves, cat, एक्स्ट्रा. ठीक है, सो उस एरिया को एंड देन अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन ऑन द वाउंड एंड टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर. ठीक है, टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर. एंड इफ इट इज ए स्नेक बाइट, ठीक है, ये तो हमने रेबिस की बात की. स्नेक, जो स्नेक बाइट है, तो स्नेक अगर बाइट करता है तो वो भी बहुत पॉइजनस होता है, पॉइजन हमारी बॉडी में चला जाता है, इससे हमारी डेथ भी हो सकती है. सो इफ इट इज अ स्नेक बाइट देन टाई ए टॉर्निकेट जस्ट अबव द बाइट सो दैट पॉइजन डज नॉट स्प्रेड. रश इमिडिएटली टू द डॉक्टर. तो उसे टाई करने, जहाँ पे स्नेक ने बेटा काटा है ना, तो उस एरिया के ऊपर आप टाइटली टॉर्निकेट से बांध दोगे, क्योंकि पॉइजन होता है. ठीक है, पॉइजन ब्लड के थ्रू. ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को हमने वहाँ पे बांधा क्यों, जिससे ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो ना करे, सर्कुलेशन रोकने के लिए. क्या रीज़न है, क्योंकि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में, ठीक है, ब्लड क्या है, ड्यू टू द हार्ट, हार्ट से ब्लड सारे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होता रहता है. ठीक है, तो जैसे ये पॉइजन ब्लड में मिक्सअप होगा तो ये सारे बॉडी पार्ट्स में जाने लगेगा. तो इसलिए एट द स्नेक बाइट हम लोग क्या करते हैं, देन टाई ए जो
जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है वहाँ पे हम लोग टाई कर देते हैं टॉर्निकेट को जस्ट अबव द बाइट, सो डैट पॉइजन डज नॉट स्प्रेड। पॉइजन क्या है, स्प्रेड ना हो स्नेक का, क्योंकि ब्लड है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड मूव कर रहा है, बिकॉज हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जैसे पॉइजन ब्लड में मिक्सअप होगा तो वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसे में पेशेंट को सेव करना मुश्किल हो जाता है। तो स्नेक बाइट के समय हम सबसे पहले क्या करते हैं, टॉर्निकेट किसी चीज़ से उसे बांध देते हैं, ठीक है, जिससे कि ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड में मिक्सअप हुआ पॉइजन बॉडी में तेजी से स्प्रेड ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो मे बी द पेशेंट विल डाई आल्सो। तो दिस प्रिकॉशन वी कैन, दिस टाइप ऑफ ए फर्स्ट एड वी कैन गिव, एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली वी टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। ठीक है, तो एनिमल बाइट्स में एक रेबिस की बात की और फिर हम लोग ने स्नेक बाइट की बात की, स्नेक बाइट। ठीक है, एक हमने एनिमल्स की बाइट जो रेबिस के बारे में बात की और एक हम लोग ने स्नेक बाइट की बात की। तो एक बार आप और सुन लो, इफ बाई चांस एनिमल्स लाइक डॉग, वुल्स और कैट अगर जे बाइट करते हैं आपको, तो इमिडिएटली क्या करेंगे आप वाटर से, ठीक है, उस इंजर्ड पोर्शन को वॉश कर दो जिससे कि जर्म्स इंटर ना करें। ठीक है, और वहाँ एंटीसेप्टिक लोशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, एंड आफ्टर दैट आप, क्योंकि इनके जो सलाइवा होता है उसमें रेबिस वायरस होता है, ठीक है, ये वायरस हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है। सो ड्यू टू दिस आल्सो द पेशेंट डाई आल्सो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंड टेक द पेशेंट को इमिडिएटली हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, क्योंकि बेटा इनके काटने से, एनिमल्स लाइक डॉग्स है, बुल्स है, कैट्स है, इनके काटने से रेबिस वायरस हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है। तो फिर डॉक्टर के पास आप जाते हैं। आप लोग को पता होगा कि इन एनिमल्स के काटने से इंजेक्शंस भी लगते हैं जिससे कि इस वायरस को ख़त्म किया जा सके हमारी बॉडी से। अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो इससे पेशेंट डाई भी कर सकता है। नेक्स्ट बताया स्नेक बाइट। इफ द स्नेक बाइट एट द प्लेस वेयर द स्नेक बाइट, उस प्लेस को टाइटली बांध देंगे हम। क्यों? रीजन इज दैट सो डैट द पॉइजन डू नॉट स्प्रेड इन द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्ट के थ्रू, बिकॉज हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो जैसे ही पॉइजन ब्लड में मिक्सअप होगा तो वो पूरी बॉडी पार्ट में स्प्रेड होने लगेगा। इससे क्या हो सकता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाए। तो उस ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस एरिया पे जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया हम उसे कस के बांध देते हैं। ठीक है, और इमीडिएटली वी टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। नाउ आफ्टर दैट है स्टूडेंट इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट्स, इंसेक्ट बाइट। अब सुनो, जो इंसेक्ट बाइट करते हैं ना, और बी भी कह सकते हो, जो मधुमक्खियां हैं, तो ये इनके जो बाइट करने से बहुत पेन होती है बॉडी में। इज इट क्लियर? द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट और ए बी, बी किसको बोलते हैं? मधुमक्खियों को। ठीक है, कैन बी वेरी पेनफुल इट काजेज, और इससे क्या हो जाता है, जहां पे ये काटते हैं हो सकता है उस एरिया में आपके स्वेलिंग हो जाए। हो सकता है आपके उस एरिया में क्या हो जाए, स्वेलिंग हो जाती है, मतलब फूल जाता है जहां पे ये काटते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या करनी चाहिए अगर ऐसा किसी को होता है, कोई इंसेक्ट काट लेता है या बाई चांस बी ने काट लिया है, मधुमक्खी ने काट लिया है, फर्स्ट ट्राई टू रिमूव द स्टिंग। ठीक है, रिमूव द स्टिंग। ठीक है, स्टिंग मतलब होता है ये जो छोटे कीड़े होते हैं ना बेटा, इनमें डंक होता है, हिंदी में इसको डंक बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे बॉडी के स्किन के अंदर उसे निडल की तरह वो चला जाता है हमारी,
बॉडी में, तो उसी से हमें बहुत पेन होती है, वो एरिया जहाँ पे काटता है वो स्वेल भी हो जाता है। तो फर्स्टली आप जहाँ पे उसने काटा है तो स्टिंग को निकाल दो, स्टिंग को निकाल दोगे पेन अपने कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? स्टिंग को आप निकाल दोगे, पेन आपकी स्वेलिंग भी धीरे धीरे जाएगी और पेन भी कम हो जाएगी। तो फर्स्टली सबसे पहला काम अगर ऐसा होता है तो फर्स्टली आप कोशिश करो, फर्स्ट ट्राई टू रिमूव द स्टिंग, अप्लाई एंड बहुत पेन होती है, सो अप्लाई आइस और कोल्ड वाटर एट द इफेक्टेड एरिया। ठीक है, आई अप्लाई आइस ऑन द, आइस है अगर फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में आइस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आइस नहीं है तो चिल्ड वाटर भी आप उस अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हो। और वी कैन आल्सो अप्लाई लाइम वाटर ऑन द इफेक्टेड एरिया। ठीक है, लाइम वाटर जो चूना होता है ना, ठीक है, उस चूने को भी आप उस जगह पे लगाओगे तो भी आपकी पेन क्या है, वो भी स्टिंग को रिमूव करने में हेल्प करता है, उससे भी आपकी पेन कम हो जाएगी। ठीक है, इफ देयर इज अ बाइट ऑफ ए बी, एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत पेनफुल होता है, दैट एरिया इज दैट एरिया मे बी यू विल सी स्वेलिंग इन दैट एरिया। तो फर्स्टली अगर ऐसा कर होता है तो आप क्या फर्स्ट एड करोगे, फर्स्टली यू रिमूव द स्टिंग ऑफ द बी। ठीक है, जो उसका डंक है, ठीक है, उसको आप रिमूव कर दो। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई चिल्ड वाटर और यू कैन अप्लाई आइस ऑन दैट इफेक्टेड एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यू कैन आल्सो अप्लाई लाइम वाटर। ठीक है, वी कैन आल्सो अप्लाई लाइम वाटर ऑन दैट अफेक्टेड एरिया। ठीक है, सो ये हो गया इंसेक्ट बाइट। नाउ लास्ट इज द स्प्रेन। स्प्रेन, ठीक है, तो स्प्रेन क्या होता है बेटा, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, कभी कभी हमारा पैर ट्विस्टेड हो जाता है, या तो हम तेजी से चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या एट द टाइम व्हेन वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, सो ये भी बहुत पेनफुल होता है। और जहाँ पे पैर ट्विस्ट होता है दैट एरिया इज आल्सो यू विल सी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, उस एरिया में दैट एरिया में क्या हो जाएगा, आपका स्वेलिंग हो जाएगी। तो स्प्रेन होगा वाइल प्लेइंग और डूइंग एक्सरसाइजेस। इसका रीजन क्या है, वाइल प्लेइंग, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, खेलते समय या कभी कभी होता है हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो भी ऐसा हो जाता है। इज इट क्लियर? तो वाइल प्लेइंग, स्प्रेन को हिंदी में कहते हैं मोच आ जाना। ठीक है, एकाएक ट्विस्ट हो जाता है और उसके बाद हमें प्रॉब्लम होती है, हम चल भी नहीं पाते हैं। इज इट क्लियर? तो ऐसी कंडीशन कब होती है, या तो खेलने में हो जाती है या एट द टाइम व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइजेस, तब भी हो जाता है कभी कभी। while playing or doing exercises, while playing or doing exercises, our tissues अराउंड द ज्वाइंट, मैंने बोला ना ये कहाँ पे होता है, जहां ज्वाइंट्स होते हैं। ज्वाइंट इज द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, ज्वाइंट वो प्लेस है जहां दो बोन्स आपस में मीट कर रही हैं। ठीक है, सो व्हाइल प्लेइंग और डूइंग एक्सरसाइजेस आवर टिश्यूज अराउंड द ज्वाइंट get twisted, and this is the reason for sprain. ठीक है, दिस इज द रीजन फॉर द स्प्रेन, यही रीजन है किसका, स्प्रेन का। ठीक है, कभी कभी हम लोग ग्राउंड में वॉक कर रहे होते हैं या तो खेल रहे होते हैं, प्लेइंग के समय या एक्सरसाइज के समय भी ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे जो टिश्यूज हैं अराउंड द जॉइंट वो ट्विस्टेड हो जाते हैं, एक झटके में गलत पैर पड़ा और तो इससे होता है स्प्रेन, जिसको हम लोग मोच बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ ए फर्स्ट एड यू कैन गिव टू द पेशेंट, अप्लाई लॉट ऑफ आइस। देखो आइस, ठंडा पानी बहुत
चीज़ों के लिए बेटर है। ठीक है, जैसे नोज ब्लीडिंग में था वहाँ भी आइस अप्लाई करने के लिए, जहाँ बर्न है तो बहुत जलन होती है, स्किन जब बर्न हो जाती है तो वहाँ भी आप लोग को कोल्ड वाटर या आइस ही अप्लाई करने के लिए बोला है। ठीक है, सो नाउ हियर व्हाट वी डू while playing, apply lot of ice on the affected area, this will reduce the pain and swelling। जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे आपके जॉइंट पे जो आपके टिश्यूज ट्विस्ट कर गए हैं, तो वहाँ पे आप एट दैट अफेक्टेड एरिया यू अप्लाई द आइस सो दैट इट रिड्यूस द पेन एंड स्वेलिंग। इज इट क्लियर? और अप्लाई ए पेन रिलीविंग ऑर्नामेंट एंड रैप ए क्रेप बैंडेज अराउंड द स्प्रेन्ड जॉइंट। ठीक है, अब पेन देखो, बहुत से जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं या कोई गेम से रिलेटेड है, बहुत से ऐसे ऑर्नामेंट हैं मार्केट में जो स्प्रेन के समय आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत से स्प्रे हैं, जैसे मूव है, वॉलनी है, ये सब ऐसे स्प्रे हैं जो बाय चांस इफ अगर स्प्रेन हो जाती है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो उस अफेक्टेड एरिया में। एंड आफ्टर दैट उस एरिया को क्रेप बैंडेज होती है। जो बच्चे गेम्स खेलते होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्रेप बैंडेज होती है, उससे क्रेप बैंडेज से आप उसको बांध दो उस अफेक्टेड एरिया को, और 2-3 बार आप इसी तरह अप्लाई करिए तो स्लोली उसकी स्वेलिंग भी कम होगी। ठीक है, या तो आप हॉट वाटर से भी, ठीक है, अगर स्वेलिंग है तो अगर आप हॉट वाटर भी उस पर अप्लाई करते हो तो भी उससे भी स्वेलिंग क्या है, कम होती है। ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। अप्लाई ये पेन रिलीविंग ऑर्नामेंट्स, वो मैंने बता ही दिया, बहुत से स्प्रे होते हैं। ठीक है, जैसे मूव है फास्ट रिलीव के लिए, ठीक है, वॉलनी है, तो ये सब स्प्रे अप्लाई करने के बाद क्रेप बैंडेज आती है अराउंड द स्प्रे। क्रेप बैंडेज जो एरिया अफेक्टेड है, जहाँ पे स्प्रेन हुई है, वहाँ पे आप क्रेप बैंडेज बांध दो बेटा। और इफ पेन एंड स्वेलिंग इज स्टिल देयर देन गो टू अ डॉक्टर। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, हो सकता है डॉक्टर आपको पेन किलर्स भी दे दे जिससे आपकी पेन कम हो। या तो स्वेलिंग ज़्यादा है, नहीं कम हो रही है, तो मे बी इट ए चांस ऑफ ए फ्रैक्चर भी हो सकता है बोन का, तो उसका पता तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, एक्सरे से ही चलेगा। लेकिन यहाँ हम लोग स्प्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर सब कुछ क्रेप बैंडेज भी लगा दी, आफ्टर दैट यू कैन गो टू द डॉक्टर। अगर पेन बहुत हो रही है तो पेन किलर्स भी आपको डॉक्टर दे सकता है। ठीक है, इफ पेन एंड स्वेलिंग इज स्टिल देयर देन गो टू ए डॉक्टर। By being a little careful, alert and following safety rules, we can avoid accident. So these types of a first aid you can give to the patient before the doctors arrive. Okay, now we have completed the chapter. Now let's start with the book exercises of the chapter. Question number A. Is it clear? Question number A. Tick the correct answer. Tick the correct answers. Tick the correct answers. Now, first question is the rabies virus is caused by option number A, dogs, hens, mosquitoes, or D is the ants.
Okay, so student, just now we have discussed animal bite, and at that time I have already explained you that the rabies virus is caused by the bite of a dog because it is present in the saliva of a dog. ठीक है, ये वायरस डॉग के सलाइवा में प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो द राइट आंसर इज डॉग्स. सो द राइट आंसर इज डॉग, बिकॉज हैंड के काटने से कोई वायरस नहीं स्प्रेड होता है. मॉस्किटो के काटने से ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया है, मलेरिया है, डेंगू है, ये सब किसके काटने से होता है? मॉस्किटोज के काटने से. ठीक है, और एंट्स के काटने से भी कोई वायरस नहीं हमारी बॉडी में जाता है. सो द रेबीज वायरस इज काज्ड बाय द बाइट ऑफ ए डॉग्स. यहाँ डॉग्स दिया है इसलिए डॉग को टिक किया. अगर डॉग की जगह वुल्व्स आ गया, कैट्स आ गया, तो दैट इज आल्सो राइट बिकॉज इट इज फाउंड इन द सलाइवा ऑफ ए डॉग, वुल्व्स एंड कैट. नोट डाउन द आंसर. Question number 2. We should wash. We should wash. We should wash a cut or wound using a dash. Option number A, shampoo. B, soap. C, oil. And D, salt. Okay, so we should wash, cut or wound using a shampoo. We apply shampoo to clean our hairs. ठीक है, so second option is soap. Yes, this is the right answer. We apply because to remove the germs we have to clean that cut or wound. Is it clear? So the right answer is soap. Note down. Now next, third one. A first aid box consists of a first aid box. A first aid box consists of dash. So what are the things which are present in the first aid box? That I have already discussed you when I explained you about first aid box. So what are the things which are present in the first aid box? Option number A, lipstick. B, talcum powder. C, antiseptic lotion. Antiseptic lotion. And D, comb. C-O-M-B. So see student, lipstick. So this lipstick is used by the woman. There is no need to put their lipstick in the first aid box. ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स में लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं. टेल्कम पाउडर, वी यूज टेल्कम पाउडर स्पेशली इन द समर सीजन व्हेन लॉट ऑफ स्वेट. ठीक है, हमारी बॉडी से बहुत स्वेट होता है, पसीना निकलता है. देन कॉम, इट इज यूज टू इन फॉर आवर ईयर्स. एंड ऑप्शन नंबर सी, यस दिस इज द राइट आंसर, एंटीसेप्टिक लोशन. एंटीसेप्टिक
एंटीसेप्टिक लोशन. Okay, so antiseptic lotion we apply on the cuts and wounds to remove the germs को रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक लोशन यूज करते हैं. एंड यस, दिस इज ए पार्ट ऑफ ए फर्स्ट एड बॉक्स. थैंक यू स्टूडेंट.